Fine. So class 9 mathematics chapter 2, that is what? Polynomial. It's a very conceptual chapter. बहुत अच्छा चैप्टर है ये. अगर ये चैप्टर ब्लॉक क्लियर हो गया तो क्लास 10 में भी चैप्टर 2 में और एक चैप्टर होगा सेम नाम का, पोलिनोमियल. इससे इजी होगा. अगर आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया ना तो क्लास 10 का जो चैप्टर होगा पोलिनोमियल वो बड़े आसान हो जाएगा और बहुत इजी हो जाएगा. स्कोरिंग उससे भी एग्जाम में 4-5 मार्क का आता है ये जो टॉपिक से. तो क्लास 9 में कॉन्सेप्ट क्लियर करना अति जरूरी है, बहुत जरूरी है. नहीं तो क्लास 10 का सोल्यूशन करना तकलीफ हो जाएगा आप लोगों के लिए. सो लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक फंडा ऑफ दिस चैप्टर पोलिनोमियल. है क्या पोलिनोमियल का मतलब है क्या? इसको मतलब को समझना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल, देन वी कैन go through the exercise and all various other things. So let us understand the meaning of polynomial. Poly means what? Poly means many terms बोल सकता है इसको बोलते हैं polynomial. क्लियर हो गया? समझ में आया बात? जो ध्यान सुनो, polynomial का भी बहुत सारा टाइप्स है. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कि polynomial है क्या उसको थोड़ा समझेगा अच्छा डीपली, और उसका जो पार्ट लो का नाम क्या है, polynomial का पार्ट लो का नाम क्या है. So now let us understand the meaning, the brief meaning of the polynomial. What is polynomial? Polynomials is an algebraic expression which consists variables which consists terms, देखो, which consists terms, variable, constant and coefficient. So what is polynomial? Polynomial is an algebraic expression. ये algebra का एक भाई है, मान सकते हैं आप. Which consists of what? Which consists of terms, variable, constant and coefficient, etc. Many things are there. तो let us go to the more depth of polynomial. ये terms क्या है इसको ध्यान दो. So let us consider this an algebraic expression. ये क्या है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, एक polynomial expression है मान लेते हैं. ठीक है, तो let us go to this point, basic definition and understanding some terms. Okay, understanding. So what is terms? हमने बोला यहाँ पे terms, variable, constant, coefficient है क्या. तो टर्म्स क्या है कि इन एनी पोलिनोमियल या फिर इन ए पोलिनोमियल, सपोज फॉर एन एग्जांपल आई कंसीडर दिस इज अ पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर, 3x and 4, these are called different terms, and terms are always separated or particulated by a plus sign or a minus sign. Remember this thing. I hope it is clear. Okay, so here how many terms are there? There are 3 terms. One term, second term, third term. First term is what? 2x square, 3x square, 4 square. Means the particular expression. The particular or individual expression in a polynomial is called what? Is called terms. And remember, the terms are separated by a plus sign or a minus sign in a expression. I hope it is clear. Very good. So remember this one. So here what is called? What are the terms here? 2x square plus 3x plus 4. These are called the respective terms of this polynomial. Clear? And remember this one note I like to provide you here. Note that terms are separated by what? By plus or minus sign. Remember, these terms are separated by plus or minus sign. This is a very nice concept. I hope this point is clear. Now let us go to next point. That is what? Consider that is what? Coefficient. You consider coefficient. What is coefficient? The in a particular term. In a particular terms is called what? Is called coefficient. Remember this thing.
The numerical value present with any variable in a particular terms is called coefficient. What does it means? Let me clear it up for you. Here, what is the terms here? 2x square, is not it? 2x square. And what does x square represent? It is what is x here? X is a variable. And what is variable? The question rises here. Variable is anything which do not have a fixed value. The value may be different based upon the condition. x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है. हमको मालूम नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि x का एक्चुअल वैल्यू क्या है. ओके, एंड हियर वन मोर x इज देयर. ये भी क्या है? वेरिएबल है. इसका साथ जो है ना नंबर, उसे क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट. क्या कहते हैं? कोफिशिएंट. आई होप इट इज क्लियर. दैट्स व्हाई आई मेंशन हियर द The numeral value present with any variable in a particular terms is called coefficient. जैसे कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है कि नहीं? हाँ, x स्क्वायर है. इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है. जैसे 3x, यहाँ पे वेरिएबल है कि नहीं? हाँ है. क्या है वेरिएबल यहाँ पर? x है. x का न्यूमरल वैल्यू क्या आगे में? 3 है. और लेकिन क्या ये 4 कोफिशिएंट है? नहीं, क्योंकि ये 4 का साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है. So we cannot call the 4 as a coefficient. It has a fixed value. 4 is a fixed value. So 4 is called a constant term. I hope this point are clear. समझ में आएगी बात जो? तो और एक चीज है, आपको पूछेगा कि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल is any form या फिर is any unknown value. Okay, variables are any unknown values. Here, what is coefficient in this expression? If I ask you, what is the coefficient of x square? Remember here, what you write? The coefficient of x square. The coefficient of x square is what? Is 2. And the coefficient of x is what? 3. Remember this one. The coefficient of x square is 2 and the coefficient of x is 3. Similarly it goes on. But 4 is not a coefficient because 4 it has no what? There is no variable with it. Clear? Very good. The last, the variable, the simple definition of a variable from my side. The unknown value of a terms which is represented by x, y or z in a particular terms. जैसे कि in this polynomial, what are the variable presents? x variable है. यहाँ पे क्या है? x है कि नहीं? So here x is mainly represented as what? As the variable of this polynomial. समझ में आया होगा पूरा क्लियरली, है कि नहीं? तो वेरिएबल सिर्फ x ही नहीं, y से नहीं, z से भी नहीं, कई अल्फाबेट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. वी कैन रिप्रेजेंट बाय मेनी ऑफ द अदर अल्फाबेट्स. समझ में आया कि नहीं बात जो? तो एक चीज ध्यान देना, जैसे कि मैंने एक चीज लिखा यहाँ पे, इंटरेस्टिंग थिंग हियर. सपोज आई मेंशन हियर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा बोला. व्हाट आर द वेरिएबल्स हियर? यहाँ पे तो a भी नहीं पता ना, b भी नहीं पता ना. x समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है. और जो a b c है ना, इन लोगों को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं. जो इंग्लिश अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर्स होता है उसको ज्यादातर केस में क्या पाता? ज्यादातर केस में हम लोग कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि ठीक है. और क्योंकि a भी x भी है तो आप कन्फ्यूज हो सकता है कि दोनों वेरिएबल है क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है कि इसमें से एक क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, एक वेरिएबल होगा. यहाँ पर ऐसा है. तो ज्यादातर मतलब ऐसे केस में अगर आपको a और a z मिलेगा तब a अगर x मिलेगा. सपोज अभी देखो a x भी है, y भी है. सो रिमेंबर a जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. x और y क्या होगा? वेरिएबल माना जाता है. समझ में आया बात जो? इट इज वेरी स्ट्रांग पॉइंट in this topic. I hope it is clear. So we have clear terms, coefficient, variable. Now let us understand constant. What is constant? Very easy. What is constant? Means if any fixed value is present in a expression is called what? It's called a constant term. Clear? So now what is constant term? If any fixed value is present in an expression, in an polynomial expression is called what? It's called constant. आई मानो कि ये एग्जांपल है, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है. बोलो तो आप लोग इसमें कौन सा यहाँ पर कांस्टेंट है? इसमें कांस्टेंट है 4, लेकिन 3 नहीं है. लेकिन देखो 3 का साथ में लेकिन एक तो अननोन वैल्यू है, एक तो वेरिएबल है. देखो तो हम 3 को हम लोग कांस्टेंट नहीं बोल सकते. कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है और ये एकला ही
खुश है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे ही मान सकते हैं जो शादीशुदा नहीं है। ठीक है, मानो कि एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। बोलो तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है 9। अब मैं अगर पूछूं मैं आप लोगों को कि x का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? वेरी गुड। अगर कुछ नहीं है तो 1 सबका परम बंधु। 1 इज द फ्रेंड्स ऑफ एवरी नंबर। रिमेंबर ये चीज को, ठीक है? x इसका कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? 1 तो है कम से कम। याद रखना चीज को। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 9 भी नहीं है, आई बोलो इस एक्सप्रेशन का कांस्टेंट क्या है? नहीं है, मतलब 0 है। नहीं मतलब 0 है। समझ में आया कि नहीं? x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? 4 है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? अगर मैं यहाँ पे दे दूं 1/2, अभी बोलो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1/2 है। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? खेल समझ में आ रहा है? मतलब जो नंबर इकला होता है, जैसे कि मानो क्या है 9 है, ये नंबर है, शादी नहीं किया है, इसका बीबी नहीं है मानो, तो ये नंबर क्या है? एक कांस्टेंट है। जिसका बीबी हो गया, समझ ये 4 शादी किया है है कि नहीं? तो उसका बीबी है, तो ये नंबर क्या बन गया? है कि नहीं? ये पति, ये क्या है? स्त्री, है कि नहीं? स्त्री पुरुष बोलता ना ये जिसको, तो ये जो नारी होगा ना जिसका बीबी को क्या बोलता है उसको? वो वेरिएबल है। और ये जिसका जो हस्बैंड होगा वो क्या है? कोफिशिएंट है। अभी देखो शादी करने के बाद 2 साल बाद में बच्चा होगा 2, है कि नहीं? तो इसको क्या बोल गया फिर से? ये है वो ये है वेरिएबल है, उसका 2 बच्चा, उसका पावर हो गया उसका। और आगे जो भी बैठेगा 5, 7, 8, 9 वो सब क्या? पति, वो क्या हो गया? कोफिशिएंट। समझ में पूरा क्लियर है कि नहीं? मैंने पूरा इन डिटेल बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर ये 7 और ये 4 को क्या बोलेंगे? इसको बोलेगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। और यहाँ पे जो x है ये सब क्या है? क्योंकि इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसका वैल्यू। और जिसका फिक्स वैल्यू है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। आई होप इट इज वेरी क्लियर। कीप इट अप माइंड। Very good. So we have cleared the basic terminology of the polynomial. What is the term, variable, constant, coefficient is clear. I hope it is clear. Okay, now let us go to next point. Types of polynomial. Next topic is what? Types of polynomial based on number of terms. सबसे पहले आएगा आपका मोनोमियल। क्या आएगा? मोनोमियल। मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है? लड़की का नाम। मोनो मीन्स 1। जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। मीन्स द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ 1 टर्म इज कॉल्ड व्हाट? मोनोमियल। is called monomial. Remember this one. The algebraic expression which consists of 1 term is called monomial. याद रखना। एग्जाम्पल बोलो, जैसे कि मानो कि 2x प्लस कुछ नहीं है और एक ही टर्म है, इस पोलिनोमियल में एक ही टर्म है, वो क्या है? 2x, खत्म। या फिर मानो कि एक ही x स्क्वायर और नहीं, कुछ भी नहीं है। मानो कि 4y स्क्वायर ऐसे मान लो, या फिर 4z, या फिर z 4/3 z स्क्वायर ऐसा है। तो देखो एक ही टर्म है कि नहीं? यहाँ पे प्लस नथिंग, प्लस कुछ दिया क्या मैंने? मतलब यहाँ पे क्या एक ही टर्म है, तो क्या बोलेगा इसको? इसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल। समझ में आ सकता है? आया बढ़िया से। अभी नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, वो है बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बाइनोमियल? द algebraic expression which consists of 2 terms. So simple. The algebraic expression which consists of 2 terms. Just plus कुछ और हो गया, तो लिखो इस चीज को। The algebraic expression which consists of 2 terms is called what? Is called what? Binomial. जैसे कि एग्जांपल मान लो 2x + 4, ये एक्सप्रेशन है कि नहीं? इसमें कितना टर्म है? 2 टर्म है कि नहीं? समझ में आया क्या? तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल एक्सप्रेशन। सो सिंपल।
जैसे कि और एग्जांपल मान लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मान लो, ये भी क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बहुत सा ढेर है, 4x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अभी एक आपको एक घुमाओ एक चीज को, देखो ये एक कंसेप्ट यहाँ पे आएगा। मैं अगर बोलूं 2x प्लस 2x, क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? देखो ध्यान से, क्या ये 2x प्लस 2x बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों बोलो तो? क्योंकि इसको आप जोड़ सकते हो। यू कैन एड दिस टू टर्म, यू कैन एड दिस टू टर्म। 2x equal to what? 4x. Ultimately it converted into what? One expression, one term. So you cannot say 2x is a binomial expression, because still it has capability or it has capacity to get added up. I hope you can catch what I am saying. Suppose one more example I am giving. Suppose consider there x square plus 2x square. By looking at this expression, you will definitely say that this is what? This is a binomial expression, but actually it is not. Why it is not? Let me clear it up. Because you can still add it up. It has a still tendency to addition, for addition purpose. So we can say x square plus 2x square equal to what? Is equal to 3x square. So we cannot say this is a binomial. This is a monomial. What is clear? But you can see this example, 2x plus 4. Can you add this one? It is no more able to further addable. So this is not considered as a monomial. It is a binomial. That is why. But these are what? These are monomial. Though it seems like what? It is a binomial, but actually it is not a binomial. I hope it is very clear, crystal clear. Now let us go to next type, that is your trinomial. What is that? Trinomial. Just we have to clear the concept. Trinomial. Now let us go to third type of polynomial, that is what? Trinomial. The algebraic expression which consists or composed of 3 terms are called trinomial. जैसे कि एग्जांपल मान लो, जैसे कि वही एग्जांपल मान लो, एग्जांपल के तौर पे मान लो इसको 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है कि नहीं? इसमें कितना टर्म है? 1 2 3 टर्म है. सो वी कैन क्लियरली से दैट दिस इज ए ट्राइनोमियल. या और एक मान सकते हैं, जैसे कि मान सकते हैं आप 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9, ये भी क्या है? एक ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म है, अलग अलग टर्म है, जिसको और जोड़ नहीं सकते हैं. अगर मैं पूछूं क्या ये ट्राइनोमियल है, देखो तो 2x प्लस 4x प्लस 9 क्या ट्राइनोमियल है या नहीं? यह नहीं हो सकता है. क्यों बोलो तो? क्योंकि इसको आप जोड़ सकते हैं अभी भी, इसे जोड़ना लायक है अभी भी, है कि नहीं? 2x प्लस 4x, इसका देखो वेरिएबल सेम है तो अभी तक जोड़ सकते हैं इसको. कितना होगा? 6x प्लस 9. सो इट इज कॉल्ड ए बाइनोमियल, नॉट अ ट्राइनोमियल. लगता है वो ऐसा धोखा हो जाएगा आपके साथ में कि लगता है कि वो ट्राइनोमियल है, लेकिन वो क्या है? ट्राइनोमियल एक्चुअली है ही नहीं. जोड़ सकते हो उसको और भी जोड़ सकते हो. और जब मान लो जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4, क्या ये ट्राइनोमियल है? ट्राइनोमियल? क्यों है? अरे इसको और जोड़ सकते हो, इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? देखो आपको ध्यान से जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 13 होगा. ये कितना होगा? 13 होगा. तो ये बाइनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है ही नहीं. कैसा लगा? चमका है ये नहीं? अगर ट्राइनोमियल का आगे भी और भी देगा, अगर ज्यादा टर्म होगा 3 से अधिक, 2 से अधिक, इसको क्या बोलेगा? पोलिनोमियल. क्लियर हो गया? ज्यादातर ये तीनों ही हो सकता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और भी होगा तो बहुत सारा होगा. क्वाड्रिनोमियल, अमुक होते देगा सब करके. समझ में आया बात जो? वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल मींस पावर बोल सकते, पावर. तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसका आधार पे भी पोलिनोमियल का टाइप्स बहुत सारा होता है. ठीक है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. तो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आर एज फॉलोस. सबसे पहला है आपका नंबर 1, वो है लीनियर पोलिनोमियल. क्या है? लीनियर पोलिनोमियल. ध्यान से सुनो, ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल? मींस द पोलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 1. इसको बोल सकता है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और टॉपिक ऐसा हो सकता है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. बेस्ड ऑन डिग्री. डिग्री का मतलब होता है पावर. यहाँ पे पावर ऑन द कोवेरिएबल.
या ये चीज को ध्यान देना। तो देखो व्हाट इज लीनियर पोलिनोमियल, यहाँ पे लिखो द पोलिनोमियल which has degree 1, the polynomial which has degree 1। एग्जाम्पल और भी अच्छा समझ में आएगा। द पोलिनोमियल विच हैज डिग्री 1, जैसे कि मानो 2x + 4। देखो यहाँ पे क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल है कि नहीं? बाइनोमियल है, मतलब पोलिनोमियल तो है ना, एक बाइनोमियल एक पोलिनोमियल तो है। तो क्या दो यहाँ पे देखो डिग्री कितना है यहाँ पे, मतलब x का मैक्सिमम पावर कितना है? देखो तो 1 है ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं उसको? लीनियर पोलिनोमियल। इसका और एक नाम होता है लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलते हैं, वन वेरिएबल। इसमें क्या है? वेरिएबल तो एक ही है। अगर ऐसा होता 2x + 4y + 3 ऐसा होता, तो ये क्या है? लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। इसका नाम क्या होता है? ये है लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी एक अलग सा वेरिएबल है। समझ में आया कि नहीं? तो आपका क्लास 9 पे ये जरूरी नहीं है, ये हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे अभी, बाद में। अभी मेनली हम लोग डील करेंगे इसी के बारे में, लीनियर पोलिनोमियल के बारे में हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ने वाला है। ये अभी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 2 पोलिनोमियल यूज हो रहा है। ठीक, क्लास 10 में पढ़ेंगे इस चीज के बारे में। क्लियर और समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आई होप द लीनियर पोलिनोमियल इज क्लियर। मींस द पोलिनोमियल व्हिच इज डिग्री 1, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। आई होप इट इज क्लियर माय डियर। एग्जांपल जैसे मान लो, और एक मान लो 2x, ये भी क्या है? ये भी एक है। मानो कि 4x + 29, ये भी क्या है? ये भी एक लीनियर पोलिनोमियल है। हम लोग नंबर ऑफ टर्म नहीं दिखेगा यहाँ पे, हम लोग सिर्फ क्या दिखेगा? डिग्री दिखेगा, डिग्री मतलब पावर दिखेगा, पावर। ये क्या? ये मोनोमियल मानता है, लेकिन इसका डिग्री कितना है? 1 है। ये बाइनोमियल मानता है, इसका डिग्री कितना है? 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। नेक्स्ट आपका होगा, नेक्स्ट जो टाइप होगा वो क्या होगा आपका? वो होता है आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। What it means? The polynomial which has degree 2. The polynomial which has degree 2. सुंदर से लिखो। Is called quadratic polynomial. The polynomial which has degree 2 is called quadratic polynomial. जैसे कि मान लो, एग्जांपल मान लो 2x² + 4x + 9 मान लो। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना है x का? यहाँ पे मैक्सिमम पावर है 2। तो हम लोग मैक्सिमम पावर से देखिए वेरिएबल का, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा हो सकता है जैसे कि x² + x, ये भी क्या है? ये इधर ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। समझ में आया बात? जो समझ में आया? मानता है कि बाइनोमियल है, लेकिन ये भी क्या है? हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखेगा इसमें। व्हाट विल सी ओनली? विल ओनली सी द पावर और डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर होता है? याद एक चीज आपको बहुत बड़ा कंसेप्ट देता है कि पोलिनोमियल का जो जनरल होता है ना, जनरल एक्सप्रेशन होता है, वो ऐसा होता है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मेंशन करना कि जनरल एक्सप्रेशन जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्या? ये बचने से पोलिनोमियल नहीं बोलेगा ना, इसको क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकता इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज को याद रखना हमेशा। ये क्लास 10 में बहुत यूज होने वाला है, ये चीज को बहुत ध्यान से याद रखना। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज व्हाट? ax² + bx + c where a cannot be 0 और bc क्या है? a b c are what? a b ये सब क्या है? ये है कोफिशिएंट और c क्या है?
कांस्टेंट याद रखना जिसको। लेकिन बी और सी जीरो हो सकता है, बी और सी याद ना, बट बी एंड सी कैन बी जीरो, कैन बी जीरो। ये बहुत ध्यान से रखना है बात मैंने जो बोला है यहाँ पर। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ में आया? या और एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मानो कि एक्स स्क्वायर प्लस हम बोले सिर्फ एक्स स्क्वायर या 4x स्क्वायर, क्या ये है, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? हाँ ऑब्वियसली है। देखो पावर कितने मैक्सिमम, सिर्फ पावर को देखो आप, सिर्फ पावर को आप देखो, ठीक है। मानता है ये मोनोमियल है लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक मोनोमियल पॉलिनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं इसको? क्वाड्रेटिक मोनोमियल बोल सकते हैं कि नहीं? क्वाड्रेटिक है लेकिन मोनोमियल है। क्लियर हो गया? क्वाड्रेटिक मोनोमियल इसका नाम हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, ये चीज को याद रखना। हम बोला था ये डेफिनेशन में फिर होता है कि नहीं? यहाँ पे देखो तो इसमें ए क्या है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, एक्स स्क्वायर है। बी क्या है यहाँ पे, बी है लेकिन वो क्या है 0 है, 0x। सी भी क्या है, सी भी 0 है। बी भी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन ए अगर 0 होगा ना तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं उसका, वो खुद ही खत्म। एग्जाम्पल मानो कि यहाँ पे मान लेता है कि ये 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 मानो, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? अरे भाई 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, ये पूरा भस्म नहीं हो गया क्या? ये पूरा भस्म हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या बचा? हाँ 0 प्लस 4x प्लस 2 बचा कि नहीं? तो ये क्या बचा? ये बाइनोमियल हो गया, बाइनोमियल। और ये क्या हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो 0 का तो कुछ मीनिंग है ही नहीं आगे में, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं हो गया क्या? तो लीनियर हो गया, पावर 1 है इसका। तो इसलिए बोला कि a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। a अगर 0 होगा तो वो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे, उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। द थर्ड डिग्री वो क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। या रिमेंबर दिस थिंग, नंबर 3 इट इज व्हाट? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको तो आइडिया लग चुका होगा, अगर लीनियर का मतलब होता है 1 वेरिएबल, ए 1 पावर है, क्वाड्रेटिक का पावर कितना है 2 होता है, तो आपको तो इतना दिमाग में आ चुका है क्यूबिक मतलब क्या है, जिस पावर 3 होगा ऑब्वियसली डेफिनेटली। तो क्या लिखिए इसका डेफिनेशन? द पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 3, द पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 3। तो लिखो बढ़िया से, is called what? Cubic polynomial. Cubic याद रखना चीज को। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देता आपको, मानो कि ये एग्जाम्पल 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है? ऐसा है वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, है कि नहीं? एक एग्जाम्पल दे दिया आपको हाथ में। हाँ तो यार मैक्सिमम पावर कितना है एक्स का? 3 है कि नहीं? तो डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया इसका। तो डिग्री 3 होने की वजह से इसका नाम क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा लगा? और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? याद रखना, द जनरल डी ए मान देता है इसको, वेयर यहाँ पे ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, लेकिन बी सी डी 0 हो सकता है। इन बी सी डी क्या हो सकता है? 0 होने का संभव है, लेकिन कभी भी ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। हियर ए कैनॉट बी 0, बट इफ यू वांट, बट बी सी एंड डी कैन बी 0, इट कैन बी 0। दैट इज वाई हम एग्जाम्पल और एक देंगे आपको ज़्यादा क्लियर होने के लिए। मानो कि एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे और एग्जाम्पल के तौर पर हम दिया 4x क्यूब, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है? एक ही टर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है? ऑब्वियसली है। किसका पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 3 है कि नहीं? 3 एक्स मैक्सिमम पावर। तो व्हाट अबाउट बी सी डी? बी सी तो है ही नहीं। अरे है भाई, लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 होने की वजह से पूरा 0 हो गया। जैसे कि ये देखो एग्जाम्पल 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, क्या हो रहा है ना? यहाँ पे क्या है? बी भी 0 है,
C भी 0 है, D भी 0 है, इसलिए 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी क्या होगा 0 हो गया, ये भी क्या होगा 0 हो गया, तो 0 0 0 क्या लिखिए इसको, छोड़ो इसको, तो इसलिए क्या बचा दिया ये। क्या फील हो रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज द थिंग, पावर डिपेंड अपॉन द पावर और द डिग्री द टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल आर एज फॉलोस, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर पावर 4 होगा तो उसका नाम क्या हो सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग देख लो, वो है आपका फोर्थ, वो है आपका बाई क्वाड्रेटिक। क्या नाम है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक। ये क्या हो सकता है, इसका एक स्टेप और आगे, मीन्स व्हाट, पोलिनोमियल is called biquadratic polynomial. याद रखना है जिसको, जिसका डिग्री 4 हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये 4x टू का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ये क्या है, ये क्या एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हो गया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन। याद रखना चीज को, ठीक है। जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल अगर a 0 होगा तो वो बाई क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता है। क्या आपको क्लियर हो गया, इसका इतना यूज नहीं है अभी भी, क्लास 10 में मिले 1-2 क्वेश्चन इसका ऊपर, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ऊपर। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर वेरी वेल, वेरी गुड। नाउ यू कैन इजीली कैरी आउट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और एक बात आप लोगों को बोलना चाहता था मैं, और एक पता है, और एक तो क्या बोलता है, जीरो पोलिनोमियल, पता है वो चीज के बारे में, जीरो पोलिनोमियल। वो क्या है जीरो पोलिनोमियल, जिसका पावर 0 है। तो किस तरह का पोलिनोमियल का पावर 0 हो सकता है, नंबर 5 है जीरो पोलिनोमियल। हम लोग क्वेश्चन में आ गया, अगर ऐसा लिखे क्या, ये क्या जीरो पोलिनोमियल है क्या, 1 तो है पावर से कम, तो जीरो पोलिनोमियल किस तरह का पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है, पावर 0 नहीं, इसका हाँ ये बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 0 मतलब क्या 1 नहीं है क्या, तो 2 इंटू 1 नहीं होगा क्या, मतलब क्या 2 नहीं होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया क्या ना। तो यहाँ पे लिखो एनी कांस्टेंट लिख लो, एनी कांस्टेंट पोलिनोमियल has degree what, has degree 0, याद रखना जिसको, and which is also called what, which is also called जीरो पोलिनोमियल, ये हमेशा ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलता है, जीरो पोलिनोमियल भी बोला जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द नोट लिखना, द डिग्री ऑफ ऑल कांस्टेंट is what, is 0. The degree of all constant is what, the degree of all constant is what, 0. It's a very important concept.